Next question is question 4, which they have asked that you have to find ry equal to ru minus rv. That is the rate of growth, instantaneous rate of growth. And given function is y is equal to u over v. Given function is y is equal to u over v, while v is a function of g into t and u is a function of f into t. So these two functions are given there. So we just have to take ln on both sides, ln y, ln u upon v. So we can write it ln u minus ln v, that is ln y. Now take differentiate with respect to t. So what will be ln y? That is 1 upon y dy by dt. And what about u? U is what? 1 over u, and it will be a du over dt, minus what will be the variable of v? That is 1 over v and dv over dt. So look at this. This is the actually the rate of growth of u. This is actually rate of growth of v. So we can say it ru, and we can write it rv, and similar I can say it ry. तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो उसने पूछा था कि आप ये फाइंड करके दें. तो हमने क्या किया, सिर्फ जस्ट हमने इसके डेरिवेटिव लिए, लॉग लेने एलन के लेने के बाद हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिए हैं. तो हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जी. मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्क्ड that is same like of 4, ry is related to rp. that is the question कि हमें ry को rp से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन है जी जो उसने पूछा हुआ है. अच्छा, और अब उसने क्या दिया हुआ है, कहता है रियल इनकम y है और नॉमिनल इनकम कैपिटल y है, डिफ्लेटेड बाय द प्राइस लेवल, जो कि प्राइस लेवल के लिहाज से. यानी कि क्या मतलब है, इसका मतलब जो है कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि जो रियल इनकम है, रियल इनकम यानी ये जो रियल इनकम है जनाब, बड़ा आसान सा काम दिया हुआ है. दैट इज इक्वल टू अ नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम और अपॉन में उसने प्राइस दिया हुआ है. तो ये चीज़ उसने पूछी हुई है. अब देखो ये वाई स्मॉल में दिखा हुआ है, ये स्मॉल में, ये कैपिटल में है. तो ये कैपिटल वाई अपॉन पी आ गया. ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है. तो सिंपल क्या करना है आपने, जस्ट इसको एलन ले ले, सेम उसी तरह से एलन वाई माइनस एलन पी. मैंने डायरेक्टली ले लिया एलन लेने से पहले. ठीक है जी. अच्छा, नाउ we have to just differentiate with respect to t. Now differentiate with respect to t. So what about ln y? That is 1 upon y dy by dt. And ln y by that is a nominal income, what we can say, that is a capital Y, and dy upon dt. And for price 1 over p, and we can say dp over dt. So all are what about, that is a rate of growth. So what we can call it, that is ry, that is a small y, that is a real income. That what about this, that is r capital Y, that is our nominal income, and the price. So this is the question which they have asked for. Question number 5 now. Now ji further move towards this question. Question number 6 ji next. In question number 6 they have asked that you just have to prove this question. It means that we have a two variable u and v. So we can say that is let z is a function of u minus v.
हमने क्या कहा कि z जो है वो u माइनस वी का एक फंक्शन है, हमने इसको सपोज कर लिया। अच्छा, और ये हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है, डिफरेंस है टू फंक्शन का। ये क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस है जी, किसका है? डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ऑफ टू फंक्शंस फॉर, किसके लिए? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ के लिए। तो ये हमने इसको कंसिडर कर लिया और z ले लिया u माइनस वी। नाउ वी टेक द ln on both sides, so it will be a ln z and equal to ln u minus v. So we take the derivative, differentiate with respect to t. We call it 1 upon z dz over dt, and when we take the derivative of ln u minus v, that is 1 upon u minus v, and again the derivative of u minus v. हमने क्या किया? ln का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में, ln का मतलब यही होता है, और इसी का दोबारा आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेरे पास आ गया आर जेड, इंस्टेंटेनियस आ गया, ठीक है जी। अच्छा, ये 1 अपॉन यू माइनस वी वैसे लिखा गया, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, देखें ज़रा, u का जब डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा? डी यू बाई डी टी, यही आएगा, और v का लूँगा तो क्या आएगा? डी वी बाई डी टी, ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? सिंपल, बड़ा आसान सा काम है। देखें, जो हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ का जो फार्मूला था, ठीक है, वो क्या था? आर वाई इक्वल टू एफ प्राइम वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, ये था। या हम लिखते थे डी वाई बाई डी टी अपॉन वाई, ये था हमारा, ठीक है जी, यानी मार्जिनल फंक्शन ओवर टोटल फंक्शन। अच्छा, ये दिया हुआ था। अच्छा, अब ये चीज़ जो है आर वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम वाई इक्वल अपॉन में क्या आ गया? अच्छा, अगर मैं इसको u के अकॉर्डिंग लिखूं, इसको मैं u के अकॉर्डिंग तो लिखूंगा आर यू इज इक्वल टू एफ प्राइम यू ओवर एफ ऑफ यू, ये लिखूंगा। अब इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो एफ प्राइम यू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ यू इंटू आर ऑफ यू, यही बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसी को कंसिडर कर लूँ आर वी, यानी इसको मैं आर वी कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? एफ प्राइम वी अपॉन एफ ऑफ वी, यही बनेगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या आएगा? एफ प्राइम वी इक्वल टू एफ ऑफ वी इंटू आर ऑफ वी, यानी ये मेरे पास आ गया, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ऐसे ही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखें ज़रा, ये जो डी यू ओवर डी टी है, ये डेरिवेटिव नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं, देखें ज़रा कैसे लिख सकते हैं? u माइनस वी, इसको हम लिख सकते हैं f प्राइम u, लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ही है, ये भी वही चीज़, माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं f प्राइम v, लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है। अच्छा, f प्राइम u क्या है? f प्राइम u ये हमने वैल्यू निकाली, तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, u माइनस वी, एफ प्राइम u की जगह क्या आएगा? f ऑफ u आर यू, ठीक है। एफ प्राइम वी की जगह ये हमने वैल्यू निकाली, लिख दें आप, क्या लिखेंगे? एफ इंटू वी आर वी, ये लिखा है, ये दोनों लिखे गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करते हैं कि एफ ऑफ यू जो है, इसको हम सिंपल यू भी लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल यू भी लिख सकते हैं ना, 1 ओवर यू माइनस वी, एफ ऑफ यू को हम यू भी लिख सकते हैं, तो यू इंटू आर यू, और इसको हम वी भी लिख सकते हैं, वी इंटू आर वी, ऐसे ही है ना, ये लिखा जा सकता है ना। एफ ऑफ यू का मतलब क्या है? फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे मैंने जेड लिए, जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी, तो मैं एफ ऑफ जेड भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, एक ही बात है। तो ये यू आ गया, ये भी आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? यू
ओवर u माइनस वी, और ये क्या आ जाएगा आर यू, वैसे लिख दें, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो v अपॉन यू माइनस वी, और ये क्या आ गया आर वी आ गया, और ये क्या आ गया आर जेड। और z को हमने क्या कहा था बेसिकली, z हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था बेसिकली, देखें ज़रा, z हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, वो ये नहीं था u माइनस वी, तो इसकी जगह आप लिख दें u माइनस वी, तो ये आ गया u ओवर u माइनस वी आर यू, v ओवर u माइनस वी आर वी। तो यही प्रूव करना था, देखें यही, ये जो प्रूव आया ये देखें, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमने फाइंड कर लिया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 जो उसने पूछा हुआ था जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद।